Question number 15. An equilateral triangle has one vertex at the point 3, 4 and other at the point -2, 3. Find the coordinates of the third vertex. Find the coordinates of the third vertex. ट्रायंगल के तीन पॉइंट्स में से आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। आपने थर्ड पॉइंट फाइंड करना है। तो फर्ज करें P1 और P2 ये पॉइंट्स हैं। P1 is given, it is -2, 3. P2 is given, it is equal to P1 is 3, 4. P2 is given, it is equal to -2, 3. We have to find third vertex P3. फर्स्ट करें ये थर्ड वर्टेक्स है XY। चूंकि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब तमाम साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तमाम साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज P1, P2 and P3 are the vertices of an equilateral triangle therefore length of P1, P2 it must be equal to length of P2, P3. It is equal to length of P1, P3. अब थोड़ा सा अगर गौर करें तो तो चूंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों को इक्वेट करके आप एक इक्वेशन बना सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाई जा सकती है और इन दोनों को इक्वेट करके भी एक इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो हमें 2 अननोन x और y फाइंड करने हैं। तो हमें 2 ही इक्वेशंस की ज़रूरत होगी। तो आप कोई सी 2, जैसा कि
सर्कमसेंटर फाइंड करते वक्त आप काम किया करते थे, आप दो इक्वेशंस बना लेंगे। to consider P1, P2 is equal to P2, P3. So using distance formula on both the sides, so P1, P2, P1 is first point x1, y1, P2 is second point x2, y2. तो ये हो जाएगा -2 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 होल स्क्वायर is equal to P2, P3. Now P2 is first point x1, y1, P3 is second point x2, y2. तो ये हो जाएगा x माइनस इंटू -2 यानी x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर. Now it is equal to square root of -5 whole square plus -1 whole square. It is equal to square root of x + 2 whole square plus y - 3 whole square. अब मजीद सिंप्लीफाई करें. इट इज इक्वल टू -5 whole square. It is equal to square root of 25 plus -1 square, it is 1. It is equal to square root of x + 2 whole square plus y - 3 whole square. It is equal to square root of 26 equals to square root of x + 2 whole square plus y - 3 whole square. Squaring on both the sides to remove square root. तो ये हो गया √26 whole square is equal to square root of x + 2 whole square plus y - 3 whole square. दोनों साइड पे आपने स्क्वायरिंग कर दी. तो रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, 26 इज इक्वल टू रूट स्क्वायर, बाकी बच गया x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर. तो 26 इज इक्वल टू x square plus 4x plus 4 using a plus b whole square, y square minus 6y plus 9. Now 26 is equal to x square plus y square plus 4x minus 6y plus 13. ये हो जाएगा x square plus y square plus 4x minus 6y plus 13. 26 को आपने शिफ्ट किया, -26 is equal to 0. Now it becomes x square plus y square plus 4x minus 6y minus 13 is equal to 0. आपने P1, P2 और P2, P3 को इक्वेट किया तो आपको एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1.
अब आप एक और इक्वेशन बनाइए। उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। आप P2 P3 इज इक्वल टू P1 P3 इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। आप चाहें तो P1 P2 is equal to P1 P3 भी इक्वेट कर सकते हैं। If we consider P2 P3 is equal to P1 P3, by using distance formula again, by using distance formula, it is equal to square root of x plus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square. P2 P3 is equal to P1 P3. आपने दोनों साइड पे डिस्टेंस फार्मूला यूज किया। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स तो रूट रिमूव हो गया, बाकी बच गया x plus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square. So using a plus b whole square, it is equal to x square plus 4x plus 4 plus using a minus b whole square, it is a square minus 2ab plus b square. राइट साइड पे भी आप फार्मूला यूज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 4x माइनस 6x को शिफ्ट करें प्लस 6x माइनस 6y माइनस 8y को शिफ्ट करें तो प्लस 8y, 4 प्लस 9 13 और 9 प्लस 16 इज 25, 25 को शिफ्ट करें तो माइनस 25 इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई करें तो इट इज इक्वल टू 10x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपने 2 कॉमन दिया, बाकी बच गया 5x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ 5x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक और इक्वेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ x एंड y।
अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आप इक्वेशन नंबर 1 चूंकि स्क्वायर फॉर्म इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2 लीनियर इक्वेशन है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y इज इक्वल टू 6 माइनस 5x, y की ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड की, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 6 माइनस 5x होल स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x minus 6 into y is equal to 6 minus 5x minus 13 is equal to 0। अब मजीद सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज using a plus b whole square, it is equal to 36 minus 60x plus 25x square using a minus b whole square plus 4x minus 6 को मल्टीप्लाई करें तो minus 36 plus 30x minus 13 is equal to 0। तो x square plus 25x square, it is 26x square plus 36 minus 36 cancelled, minus 60x plus 30x plus 4x, it is equal to minus 26x minus 13 is equal to 0. So 13 can be taken common. You left 2x squared minus 2x minus 1 is equal to 0। 13 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर्स बन सकते हो तो फैक्टर बनाएं, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। तो इसके फैक्टर बन सकते हैं, आप फैक्टर बनाइए। फैक्टर नहीं बन सकते, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कीजिए। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर minus 4ac whole divided by 2a minus b is equal to minus 2 plus minus square root b square यानी minus 2 whole square minus 4a is equal to 2 c is equal to minus 1 whole divided by 2a is equal to 2। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 2 plus minus square root of minus 2 whole square, it is 4, minus into minus is plus, 4 into 2 into 1, it is equal to 8, whole divided by 4। ये हो जाएगा x is equal to 2 plus minus square root 12 divided by 4। Now 12 is equal to 4 into 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 3 रूट से बाहर नहीं निकल सकता, डिवाइडेड बाय 4। तो x is equal to 2 can be taken common, you left 1 plus minus square root of 3 whole divided by 4। x is equal to
1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब देयर आर टू ऑप्शंस, x इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू it is equal to 1 plus square root 3 divided by 2. X is equal to 1 minus square root 3 divided by 2. अब x की ये वैल्यूज 1 by 1 आप पुट करेंगे। x की ये वैल्यूज 1 by 1 आप पुट करें y फाइंड करने के लिए, बिकॉज y is equal to 6 minus 5x when x is equal to first value 1 plus square root 3 divided by 2, तो y हो जाएगा 6 minus 5 into 1 plus square root 3 upon 2. Y is equal to 2 is the LCM. It becomes 12 minus 5 into 1 plus square root 3. Y is equal to 12 minus 5 square root 3 divided by 2. Y is equal to 12 minus 5, it is equal to 7 minus 5 square root 3 divided by 2. ये y की वैल्यू आ गई, y is equal to 7 minus 5 square root 3 upon 2. इसका मतलब ये हुआ कि P3 जो कि आपको फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट x, y is equal to P3, it is equal to the value of x which is equal to 1 plus square root of 3 divided by 2, 7 minus 5 square root 3 divided by 2. ये P3 का एक रिजल्ट आ गया। अब चूंकि x की दो वैल्यूज मिली हैं, इसका मतलब y की भी दो वैल्यूज होंगी, इसका मतलब P3 के दो ऑप्शंस हो सकते हैं। अब आप सेकंड वैल्यू y की पुट करें, तो अगेन कंसीडर y is equal to 6 minus 5x when x is equal to 1 minus square root 3 upon 2, second value of x, तो y हो गया 6 minus 5 multiplied by 1 minus square root 3 upon 2. Now y is equal to 12 minus 5 into 1 minus square root 3 divided by 2. Now y is equal to 12 minus 5 minus into minus plus 5 square root 3 divided by 2. Now y is equal to 12 minus 5, it is equal to 7. 7 plus 5 square root 3 divided by 2. इसका मतलब ये हुआ कि P3 x, y is equal to the value of P3, it is equal to 1 minus square root 3 upon 2, comma 7 plus 5 square root 3 divided by 2. अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि P3 के दो रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। P3 के दो रिजल्ट, P3 जब पॉइंट एक है तो रिजल्ट एक ही होना चाहिए, यहाँ दो रिजल्ट्स आ गए, तो दो रिजल्ट्स क्यों आ गए, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, फिगर अब बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ कि ये P1 है, ये P2 है, P3 जो आपने फाइंड किया ये हो सकता है अगर फर्ज करें P3 अपोजिट डायरेक्शन में है, लाइक दिस पॉइंट, तो ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकती है।
बेसिकली एक ये ट्राइंगल होगी जिसमें P1 P2 वही जो आपको गिवन है, P3 ये जो सेकंड ऑप्शन आपको मिली है P3 की, और जो फर्स्ट ऑप्शन है P3 की, तो उसमें आपको ये ट्राइंगल। अब अगर फर्ज करें आप में से फिर भी किसी को डाउट रहता है कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, तो उसको चाहिए कि P3 की फर्स्ट ऑप्शन कंसीडर करे और तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करके देख ले, तो यकीनन उसे खुशी होगी जब तीनों साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर आएगी। और फिर सेकंड केस, उसमें P3 की सेकंड वैल्यू पुट करें, फिर तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करें, तो तीनों साइड्स की लेंथ फिर भी एक दूसरे के बराबर आएगी। इसका मतलब P3 के दोनों ऑप्शन सही। अब डिस्टेंस फार्मूला, आज लेक्चर नंबर 9 था। डिस्टेंस फार्मूला तो हो गया। सच्ची बात तो ये है कि जब आपने पढ़ने हो मोर देन 400 फार्मूले और पूरी एक एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला पढ़ाया जाए, तो कोई तो ऐसी अहमियत होगी। तो आपने अगर प्रैक्टिस कर ली है तो आगे फ़ायदा होगा, प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको बार बार कहा जाता रहा है कि डिस्टेंस फार्मूले के साथ मजाक नहीं कीजिए। अब 3 मजीद फार्मूले। पहला फार्मूला है रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला for internal division या इंटरनल डिवीजन फार्मूला। फर्ज करें P1 एक पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट x1 y1। फर्ज करें P2 एक पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट x2 y2। कोई पॉइंट अगर इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करे, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज P एंड इट डिवाइड्स इंटरनली, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट के अंदर मौजूद है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है विद अ रेशो। अगर फर्ज करें रेशो हो m1:m2, m1:m2, m1 बेसिकली P1 से लेके P तक का डिस्टेंस है और m2 P2 से लेके P तक का डिस्टेंस है। फिर देखें P1 P2 ये एक्सट्रीमिटीज हैं, यानी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। कोई एक पॉइंट है P, ये अगर लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो फिर ये पॉइंट कहलाएगा इंटरनल डिवीजन पॉइंट। इसके लिए रेशियो ऑफ डिवीजन पता होना चाहिए। तो रेशियो मैंने कहा कि P1 से P तक का डिस्टेंस m1, P2 से लेके P तक का डिस्टेंस m2। अब P फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? Px, y is equal to P m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। x1 y1 ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, x2 y2 सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, और रेशो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि P1 से P तक का डिस्टेंस m1, P2 से लेके P तक का डिस्टेंस m2, तो हम कहेंगे P डिवाइड्स इंटरनली विद अ रेशो m1:m2। ये फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग इंटरनल डिवीजन पॉइंट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज रेशो फॉर्मूला। रेशो फॉर्मूला
for external division. Ratio formula for external division. रेशो फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन को भी समझने के लिए अगर फर्स्ट करेंगे है पॉइंट P1 विद कोऑर्डिनेट x1 y1, फर्स्ट करेंगे है पॉइंट P2 विद कोऑर्डिनेट x2 y2। अगर कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट के बाहर मौजूद है, लाइन सेगमेंट के बाहर मौजूद है, आउटसाइड द लाइन सेगमेंट मौजूद है, तो हम कहेंगे कि पॉइंट P x, y डिवाइड्स द जॉइन ऑफ P1 P2 एक्सटर्नली। तो इंटरनली फॉर इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नली फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। रेशियो रिमेन सेम। प्रीवियस यानी इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले में P1 से P तक का डिस्टेंस M1 था, तो यहाँ पे भी P1 से P तक का डिस्टेंस ये M1 ही होगा। इंटरनल डिवीजन में P2 से लेके P तक का डिस्टेंस M2 था, तो यहाँ पे भी P2 से लेके P तक का डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस ये M2। तो हम कहेंगे पॉइंट P डिवाइड्स एक्सटर्नली द लाइन सेगमेंट joining P1 and P2 with a ratio M1 is to M2। सीधी सी बात है कि अगर पॉइंट इनसाइड द लाइन सेगमेंट है तो इंटरनल डिवीजन, आउटसाइड द लाइन सेगमेंट है तो एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला क्या है? Px, y is equal to P M1 x2 minus M2 x1 divided by M1 minus M2, comma M1 y2 minus M2 y1 divided by M1 minus M2। तो अगर फिगर के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो जहां M2 लिखा हुआ है वो लाइन सेगमेंट का पार्ट है ही नहीं। तो जब लाइन सेगमेंट का पार्ट नहीं है तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्टिव पार्ट है। P1 P2 का एडिटिव पार्ट नहीं है, सब्ट्रैक्टिव पार्ट है। इसलिए जहां जहां M2 आया है वहां माइनस साइन आई। तो उम्मीद है कि ये चीज दिमाग में रखेंगे। फिर सुन लें, रेशो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन क्या है कि अगर पॉइंट P P1 P2 को इंटरनली डिवाइड करे विद द रेशो M1 is to M2, तो M1 x2 plus M2 x1 divided by M1 plus M2, comma M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2। और अगर फर्ज करें पॉइंट P इंटरनली ब्रेक ना करे, इंटरनली डिवाइड ना करे, एक्सटर्नली डिवाइड करे, तो फिर ये कहलाएगा एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट या रेशियो फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसके कोऑर्डिनेट M1 x2 minus M2 x1 divided by M1 minus M2, comma M1 y2 minus M2 y1 divided by M1 minus M2। एक और फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो नाम ही से पता चल रहा है कि a point which is equidistant from the extreme points। अगर P1 फर्स्ट पॉइंट है x1 y1 और P2 सेकंड पॉइंट है x2 y2, a point which is at the same distance, a point which is at the same distance from P1 and P2, it is said to be midpoint। इसका मतलब P1 से P तक का डिस्टेंस और P2 से P तक का डिस्टेंस अगर बराबर है तो फिर ये कहलाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला है P x, y is equal to P x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2
डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लें। रेशियो फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे। फर्स्ट करें, क्वेश्चन है फाइंड द मिड पॉइंट of the line segment joining 1 comma minus 2 and 3 comma suppose 8. Let P1 is first point, 1 comma minus 2, P2 is second point, it is 3 comma 8. इसका मतलब P1 हो गया x1 y1 और P2 हो गया x2 y2. तो let P x comma y is the midpoint. It is the midpoint of P1 P2. तो इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लें। तो P x comma y is equal to P x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. So P is equal to 1 plus 3 upon 2 minus 2 plus 8 upon 2. So P is equal to 4 upon 2 comma 6 upon 2. P is equal to 2 comma 3. तो ये हो गया पॉइंट P। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जो गिवन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है। तो एक तो भाई ये फॉर्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए आप लोगों को, तीनों फॉर्मूले। और दूसरी बात ये है कि मिड पॉइंट, मैंने मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया है, लिखने की तमीज़ यही होनी चाहिए। आप 2 4 5 या 10 सवाल खुद से बना के कोई से भी 2 पॉइंट्स, उनका मिड पॉइंट आप फाइंड कर लें। आप चाहें तो बुक का क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, उसके तमाम पार्ट्स में मिड पॉइंट फाइंड करना है। बाकी रेशो फार्मूले से रिलेटेड हम पहले 1-2 सवाल कराएंगे, याद होने चाहिए। तो ऐसे सवाल भी आपने पढ़ने हैं जिसमें डिस्टेंस फार्मूला 2 4 6 8 10 दफ़ा इस्तेमाल होता है। मिड पॉइंट फार्मूला, रेशो फार्मूला फॉर इंटरनल फॉर एक्सटर्नल सारे इस्तेमाल होते हैं। तो अगली एक्सरसाइज में यानी 2.2 में ये 3 फार्मूले तो हैं ही, इसके अलावा वही डिस्टेंस फार्मूला बार बार, जिसके लिए मैंने कहा कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह कर दीजिए। जिस वक्त ये एक्सरसाइज खत्म होगी तो फिर अचानक 13 फार्मूले आ जाएंगे। तो फिर उस स्टेज पे अगर कोई डिस्टेंस फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला या रेशो फार्मूले में जानता है तो खुशफहमी तो बेशक रखी जा सकती है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुका है। ये सारी चीज़ें मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हर साल मेजॉरिटी बच्चे जागते उस वक्त है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। तो वैसे तो डिस्टेंस फार्मूले में अगर कोई वीक है तो उसे दुश्वारी शुरू हो जाएगी नेक्स्ट क्लास से। मैंने फार्मूले लिखवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीक क्लास होगी, लेक्चर नंबर 10 मंडे ही को होगा गालिबा। अगर फर्ज करें डिस्टेंस फार्मूले में वीक हैं तो आपको हर सवाल को 8-8 10-10 दफ़ा सॉल्व करना चाहिए। ये जो एक्सरसाइज आपने कंप्लीट की है, ये एक्सरसाइज बेसिकली 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाती है। आपको मैंने 9 लेक्चर्स दिए, इसका मतलब मैंने मोर देन 90% काम आपको खुद कराया है। उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा डिस्टेंस फार्मूले में वीक है तो उसका हमारे ख्याल में तो भाई कोई इलाज नहीं है, जाग जाए तो अच्छा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।